The topic of today is the voltage regulation and how we'll find out the voltage regulation. The voltage regulation of an alternator is defined as the change in its terminal voltage from no load to full load, the speed and field excitation being constant and divided by the full load voltage. Percentage voltage regulation you can write in this way, this equation: no load voltage minus full load voltage divided by full load voltage into 100. So in this way, if you show this in the percentage, you find that is E no load voltage, that is induced voltage, minus V full load terminal voltage divided by V full load terminal voltage into 100. The value of regulation not only depends on the load current but also on the power factor of the load. For lagging power factor and unity power factor loads, voltage regulation will positive, and for leading power factor loads it is negative. So this is, in this way, the voltage regulation not only depends on the load current or armature current, but it is also depend on the power factor of the load, which type of load are connected with the alternator. Now we'll how this is the a no load voltage hai, and this is full load voltage, and V is full load voltage into 100. How you are getting negative voltage regulation? Negative voltage regulation कब होगा? जब आपका value of full load voltage is less than, full load voltage is more than no load voltage. And positive कब होगा? When the value of full load voltage is more than the value of, that is value of no load voltage is more than the value of full load voltage. उस केस में आपका रेगुलेशन पॉजिटिव होगा. तो in the case of zero power factor load, means when the load is connected pure resistive load, उस केस में क्या होता है? And load is connected pure inductive load, तो रेगुलेशन पॉजिटिव क्यों होता है? Because value of E, E क्यों ज्यादा हो जाती है? क्योंकि E is no load voltage, or at no load condition induced voltage of the alternator. No load condition में E induced voltage alternator होता है. इससे जो है, जब voltage in the case of voltage regulation as well as drop in armature impedance, that is IaRa drop and IaXL drop, जब दोनों को घटाते हैं तो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलता है. टर्मिनल वोल्टेज के केस में तब आपका वोल्टेज कम होता है, that is in the case of resistive load as well as in the case of inductive load. But कैपेसिटिव लोड के कंडीशन में, कैपेसिटिव लोड के कंडीशन में आपको हमने बताया था, when I was explaining armature reaction, जब मैं आर्मेचर रिएक्शन आपको पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि इफेक्ट क्या होता है when the connected load is pure कैपेसिटिव लोड. जब कनेक्टेड लोड प्योर कैपेसिटिव लोड होता है तो आपका इफेक्ट किस तरह का होता है? मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट. मैग्नेटाइजिंग मतलब आपका आर्मेचर करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है फील्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में होता है. जब फील्ड फ्लक्स के डायरेक्शन में होता है तो वो जो है आपका फील्ड फ्लक्स को टोटल फ्लक्स इन द एयर गैप इंक्रीज हो जाता है. जब इंक्रीज हो जाता है तो आपका टर्मिनल वोल्टेज, क्योंकि नो लोड जो वोल्टेज होता है उससे फुल लोड वोल्टेज में आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है इंक्रीज मिलता है, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज नो लोड वोल्टेज ई से ज्यादा हो जाता है इन द केस ऑफ व्हेन यू आर कनेक्टिंग द इंडक्टिव लोड विद द अल्टरनेटर टर्मिनल.
जब अल्टरनेटर टर्मिनल से इंडक्टिव लोड आप कनेक्ट करते हैं तो B की वैल्यू ज्यादा हो जाता है ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। B की वैल्यू जब ज्यादा हो जाती है तो दिस B will be more than E. What will happen? आपका वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव हो जाता है। तो इन दिस वे यू आर गेटिंग द वोल्टेज रेगुलेशन, नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन आपको मिलता है। तो यू आर गेटिंग वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, आप यू आर गेटिंग द नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन द केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर लोड। लीडिंग पावर फैक्टर लोड में आपको नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन जो है यू आर आपको मिलता है। तो इस केस में आप जो है तो रेसिस्टिव एज वेल एज इंडक्टिव लोड के केस में वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है दैट इज आपका पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटिव लोड voltage regulation negative होता है। Now how will find out the voltage regulation? How will calculate the voltage regulation? There are method of determination of voltage regulation. Voltage regulation जो है को determine करने के लिए there are two methods. पहला method voltage regulation can be determined by two methods. स्मॉल मोटर के केस में वोल्टेज रेगुलेशन आप डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं, बट लेकिन लार्ज कैपेसिटी अल्टरनेटर के केस में यू डिटरमाइन द वोल्टेज रेगुलेशन बाय इनडायरेक्ट मेथड। जब छोटी कैपेसिटी का अल्टरनेटर होता है तो वोल्टेज रेगुलेशन यू कैन फाइंड आउट बाय डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट एंड इनडायरेक्ट। दूसरा जब लार्ज कैपेसिटी अल्टरनेटर होता है तो यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन विथ इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट मेथड क्या है? दैट इज द डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। इनडायरेक्ट मेथड तीन तरह का होता है। पहला है सिंक्रोनस इंपीडेंस आर ईएमएफ मेथड। सिंक्रोनस इंपीडेंस आर ईएमएफ मेथड से फाइंड आउट करते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड एमएमएफ मेथड आर दैट इज नोन एज एम्पियर टर्न मेथड। एमएमएफ मेथड आर एम्पियर टर्न मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो हाउ विल, तो तीसरा मेथड है इनडायरेक्ट मेथड में जीरो पावर फैक्टर मेथड आर पोटियर मेथड। तो तीन इनडायरेक्ट मेथड है जिससे आप लार्ज कैपेसिटी के अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। पहला है सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड आर ईएमएफ मेथड, दूसरा है एम्पियर टर्न मेथड आर ईएमएफ मेथड, थर्ड इज द जीरो पावर फैक्टर मेथड आर पोटियर मेथड। यू विल सी फर्स्ट दैट इज सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड में आपका देखें तीन क्वांटिटी होती है। दैट इज फर्स्ट इज द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन जो है फ्लक्स की क्वांटिटी होती है, दैट इज एमएमएफ क्वांटिटी होती है। और आपका वोल्टेज ड्रॉप इन द आर्मेचर रेसिस्टेंस एज वेल एज वोल्टेज ड्रॉप इन द लीकेज रिएक्टेंस इज द ईएमएफ क्वांटिटी, दैट इज ड्रॉप इन ए पर्टिकुलर एलिमेंट, इसलिए ईएमएफ क्वांटिटी होती है। तो इस केस में सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड में एमएमएफ क्वांटिटी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को जो है आप एक फिक्टिशियस रिएक्टेंस ड्रॉप में मानते हुए इसको आप टू क्वांटिफाई करने के लिए आप उसको फिक्टिशियस रिएक्टेंस में ड्रॉप मानते हैं। मतलब इन द सिंक्रोनस इंपीडेंस मेथड में आप ईएमएफ क्वांटिटी को ईएमएफ क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दिस मेथड इज नोन एज ए ईएमएफ मेथड आल्सो। दूसरा है एम्पियर टर्न मेथड। और एम्पियर टर्न क्या है? दैट इज एमएमएफ क्वांटिटी, दैट इज एम्पियर टर्न्स इज द प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूस फ्लक्सेस, दिस इज एमएमएफ क्वांटिटी है। और हमने बताया आर्मेचर रेजिस्टेंस ड्रॉप एज वेल एज आपका जो है ड्रॉप इन लीकेज रिएक्टेंस इज द ईएमएफ क्वांटिटी। इस मेथड में हम ईएमएफ क्वांटिटी को ईएमएफ क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। Due to this reason, it is known as a
ईएमएफ मेथड, ये दोनों मेथड जो है एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन मेथड है। मतलब इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट आप नहीं पाते हैं, क्योंकि एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी में यू आर कन्वर्टिंग इन दिस मेथड। तीसरा है जीरो पावर फैक्टर मेथड और कोटियर मेथड। इस मेथड में जो क्वांटिटी ईएमएफ क्वांटिटी ईएमएफ में लेते हैं और ईएमएफ क्वांटिटी ईएमएफ में लेते हैं। सिंस जो क्वांटिटी जिस रूप में होती है उस फॉर्म में लेते हैं, ड्यू टू दिस रीजन जीरो पावर फैक्टर मेथड और कोटियर मेथड इज वेरी एक्यूरेट मेथड टू डिटरमाइन द वोल्टेज रेगुलेशन। यह मेथड जो है बहुत ही एक्यूरेट मेथड है वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने का। तो नाउ विल कम हाउ विल फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन बाय डायरेक्ट लोडिंग। तो पहला टेस्ट है दैट इज डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट, डिटरमिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन बाय डायरेक्ट लोडिंग टेस्ट। मतलब ये मेथड जो है डायरेक्ट मेथड है। इस मेथड में हम स्मॉल अल्टरनेटर स्मॉल कैपेसिटी अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। यू सी दिस सर्किट, इस सर्किट को अगर आप देखें तो दिस इज ए स्टार कनेक्टर 3 फेज अल्टरनेटर एंड दिस इज द फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड विथ रियोस्टेट। रियोस्टेट का पर्पज यहाँ क्या है? टू रेगुलेट द फील्ड करंट। फील्ड करंट को चेंज करने के लिए आप इस रियोस्टेट को यहाँ पर यूज करते हैं। इन दिस यू कनेक्ट, एक फेस में एमीटर ए कनेक्ट करते हैं जो कि लोड करंट को मेजर करता है, एंड दो टर्मिनल के बीच में यू आर कनेक्टिंग वोल्ट मीटर जो कि आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है इससे हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि दिस इज द ऑल थ्री फेसेस आर बैलेंस फेस, इसलिए जितना एक फेस में वोल्टेज होगा उतना ही बाकी फेसेस में भी वोल्टेज यू विल फाइंड आउट। ये जो है 3 फेस लोड है एंड दिस इज द टीपीएसटी ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच है, जो कि आपको लोड को जोड़ने के लिए और लोड को हटाने के लिए यूज करते हैं। दिस इज द डीसी सप्लाई। फर्स्ट आप क्या करते हैं, एंड दिस इज द प्राइम मूवर ऑफ द अल्टरनेटर, जो कि अल्टरनेटर के को रोटेट करता है। पहले आप क्या करते हैं इस मेथड में, फर्स्ट आप प्राइम मूवर से पहले फील्ड एक्साइटेशन, इसको आप डीसी कनेक्ट करते हैं, फील्ड एक्साइटेशन को आप 0 पर रखते हैं, यू आर कीपिंग इट 0 वैल्यू। नाउ यू प्राइम मूवर से जो है सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर को रोटेट करना शुरू करते हैं, और स्पीड इतनी, इसके रोटेशन से इसकी स्पीड जो है सिंक्रोनस स्पीड पर यू आर with the help of prime mover you maintain the speed of the alternator at synchronous speed। इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड तक प्राइम मूवर की हेल्प से आप इसको रोटेट करते हैं। फिर आप फील्ड एक्साइटेशन से विद द हेल्प ऑफ दिस रियोस्टेट आप वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, इतना इंक्रीज करते हैं कि यू आर दिस वोल्ट मीटर विल इंडिकेट द रेटेड वोल्टेज, यह वोल्ट मीटर रेटेड वोल्टेज बताने लगे। फिर आप इस लोड को 3 फेज लोड को इस ट्रिपल पोल सिंगल थ्रो स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो दिस लोड 3 फेज लोड इज कनेक्टेड विद द अल्टरनेटर आर्मेचर टर्मिनल से ये कनेक्ट हो जाता है। अब फिर आप ये फील्ड एक्साइटेशन को आप एडजस्ट करके इस वोल्टेज को आप रेटेड वोल्टेज तक ले जाते हैं, एंड यू मेजर this voltmeter reading and IL, the load current, this ammeter reading and IF field current को आप नोट कर लेते हैं। दूसरा, now you adjust this at this state, it will be remain at rated voltage, then you इस स्विच को आप स्विच ऑफ कर देते हैं। जब स्विच ऑफ करते हैं लोड डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसको लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, एंड यू अगेन मेजर द वोल्टेज V एंड B वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं।
तो इन दिस केस अगर ये टर्मिनल वोल्टेज को मेजर कर लेते हैं, जब ये दो वैल्यू, ये वोल्टेज फेस दैट इज लाइन वोल्टेज है, टर्मिनल टू टर्मिनल वोल्टेज है, तो दोनों केस के वोल्टेज को हम फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? दैट इज अगर BL है तो वी कन्वर्टेड BL बाई √3, यू विल गेट द बी फेस। उसी तरह पहला केस जो है, जो वोल्टेज होता है नो लोड कंडीशन में, जो भी टर्मिनल वोल्टेज होता है वो इंड्यूस वोल्टेज के बराबर होता है, तो दैट विल आल्सो कन्वर्टेड इन द नो लोड कंडीशन का वोल्टेज, दैट इज E डिवाइडेड बाई √3, दैट इज यू फाइंड EP। अब दोनों वोल्टेज फेस वोल्टेज आपको मिल जाता है, देन यू कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर, that is by using the formula voltage regulation equal to percentage voltage regulation equal to, that is E phase minus V phase upon V phase into 100। इस तरह से आप वोल्टेज रेगुलेशन जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस मेथड इज ऑलवेज यूज फॉर स्मॉल अल्टरनेटर। स्मॉल अल्टरनेटर के लिए ही यह मेथड यूज करता है। For large alternator, अब now will come for the large alternator के केस में अगर हम आए तो you will see that is there are 3 methods हमने already बताया है, that is indirect method। large alternator केस में determination of voltage regulation by indirect method। इस मेथड से हम लार्ज कैपेसिटी के अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करते हैं। हमने आपको देयर आर 3 मेथड्स, 3 इनडायरेक्ट मेथड, 3 इनडायरेक्ट मेथड है, अभी हमने आपको पीछे बताया है, दैट इज सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड आर EMF मेथड, एम्पीयर टर्न मेथड आर MMF मेथड, जीरो पावर फैक्टर आर पोटियर मेथड। ये 3 मेथड है जिनसे हम वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करते हैं बाय दीज 3 मेथड। पहला मेथड हम लेंगे सिंक्रोनस इम्पीडेंस मेथड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसको EMF मेथड क्यों कहते हैं। इसमें 2 क्वांटिटी होती है, जो आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होता है, दैट इज फ्लक्स के कारण होता है, दैट इज नॉट ड्रॉप इन एनी एलिमेंट। तो इस ड्रॉप को हम MMF क्वांटिटी होती है, और IARA ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस and drop in armature leakage reactance is EMF quantity। तो इस ड्रॉप को MMF क्वांटिटी को हम इस मेथड में EMF क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ड्यू टू दिस रीजन दिस मेथड इज नोन एज ए EMF मेथड। अब इस मेथड में फॉर कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन 3 पैरामीटर हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। वो 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं? पहला आर्मेचर रेसिस्टेंस पर फेज RA, पहला पैरामीटर हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज आर्मेचर रेसिस्टेंस पर फेज RA। इसके लिए हम DC रेसिस्टेंस टेस्ट करते हैं टू फाइंड आउट द आर्मेचर रेसिस्टेंस ऑफ द अल्टरनेटर पर फेज। इसके लिए हम DC रेसिस्टेंस टेस्ट करते हैं। दूसरा है पैरामीटर ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, which is graph between open circuit voltage against field current। एक जो है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक जो है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में ड्रा किया हुआ ग्राफ है होता है। तीसरा है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तीसरा हमको चाहिए शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, which is फाउंड आउट बाय द शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से ये 3 चीजें हमको रिक्वायर्ड है, और तीनों चीज 3 टेस्ट से फाइंड आउट की जाती है। आर्मेचर रेजिस्टेंस पर फेज हम DC रेजिस्टेंस टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। ओपन सर्किट दैट इज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हम ओपन सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हम जो है शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम
इन तीनों टेस्ट को आई कैन एक्सप्लेन यू वन बाय वन। पहला है डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट को फाइंड आउट करने के दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ ए डीसी रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें एक रियोस्टेट के थ्रू आप डीसी वोल्टेज जो है कनेक्ट करते हैं एंड ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। इसमें जो है हम फील्ड वाइंडिंग को ओपन छोड़ देते हैं। फील्ड वाइंडिंग विल केप्ट ओपन इन दिस कंडीशंस, इट विल नॉट एनर्जाइज। आप जो है एट टाइम देयर आर 3 फेज फॉर 2 फेज को हम कनेक्ट करते हैं। 2 फेज के टर्मिनल को, सपोज दिस इज आर वाई बी, 3 फेज के टर्मिनल को है, तो पहले हम आर एंड बी टर्मिनल को लेते हैं और उस टर्मिनल से एक रियोस्टेट के थ्रू आप जो है डीसी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। ये वोल्ट मीटर जो है आप दोनों टर्मिनल के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड एम मीटर इन सीरीज ऑफ द ए। अब आप जो है डीसी सप्लाई जो है रियोस्टेट के थ्रू देते हैं और इस वोल्ट मीटर और करंट एम मीटर की रीडिंग को नोट कर लेते हैं। तो ए रीडिंग जो है, अगर वोल्ट मीटर रीडिंग से वो एम मीटर की रीडिंग से आप घटाते, दैट इज डिवाइड करते हैं, यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ये दोनों बाइंडिंग है। देयर आर 2 बाइंडिंग, 2 बाइंडिंग रेजिस्टेंस। इफ यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज आरटी। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप आरटी फाइंड आउट कर लेते हैं, इस ये 2 फेज के, क्योंकि बोथ फेज आर आइडेंटिकल, ये रेजिस्टेंस जो आप फाइंड आउट करते हैं दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 2 फेज। ये 2 फेज का रेजिस्टेंस है। इस 2 फेज के रेजिस्टेंस को हम आरटी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय डिवाइडिंग वोल्ट मीटर रीडिंग विथ एम मीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर रीडिंग को एम मीटर रीडिंग से डिवाइड करते हैं। व्हाट विल बी द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ 1 फेज? इफ यू आरटी जो 2 फेज का रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया है उसको 2 से डिवाइड कर दें, यू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच फेज। तो डीसी रेजिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट ऑफ ईच फेज का डीसी रेजिस्टेंस आपको मिल जाता है। अब इस डीसी रेजिस्टेंस आपको कौन सा रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है? एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस जो है डीसी रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है ड्यू टू स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट के कारण एसी रेजिस्टेंस इज ऑलवेज मोर देन डीसी रेजिस्टेंस। तो अगर इस वैल्यू डीसी रेजिस्टेंस को हम 1.25 टू 1.5 से मल्टीप्लाइड कर दें, ये वैल्यू 1.25 से 1.5 तक किसी से वैल्यू से either you multiplied with 1.25 or you multiplied by 1.5, तो you will get the value of AC resistance per phase। इस तरह से आप AC रेजिस्टेंस पर फेज जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। AC रेजिस्टेंस पर फेज को आप जब कैलकुलेट कर लेते हैं उस केस में आप जो है तो आप पहला टेस्ट कंप्लीट कर लिए, यू हैव फाइंड आउट द AC रेजिस्टेंस पर फेज। अब आप सेकंड टेस्ट पर आते हैं, दैट विल बी ओपन सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट में सेकंड टेस्ट आप जो है, दिस टेस्ट इज परफॉर्म फॉर फाइंडिंग आउट द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अल्टरनेटर। यह टेस्ट जो है अल्टरनेटर का ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए हम जो है कंडक्ट करते हैं। इस टेस्ट में आप देखें, दिस इज द फील्ड सर्किट, इट इज कनेक्टेड विथ एम मीटर, एक एम मीटर से कनेक्ट है एंड इट इज आल्सो कनेक्टेड विथ ए रियोस्टेट एंड रियोस्टेट से कनेक्ट है एंड ए डीसी सप्लाई विल बी गिवन टू दिस। एक डीसी सप्लाई जो है कनेक्ट कर देते हैं। नाउ